Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am present here with a new video of chapter number 8, cell structure and function. All my dear students, as you know that until now we have just discussed about the cell, various type of cell, as well as we have also discussed types of organisms on the basis of number of cell, structure of cell, and in structure of cell we have discussed about the cell membrane, as well as we have also discussed about the cytoplasm, we have also discussed about the nucleus. So it's time to be discuss about the cell organelles. Those are the special subunits, or we can say that special membrane bound structures. Those are found or suspended, or we can say that embedded in the cytoplasm. As you know that cytoplasm is the gel-like or jelly-like substances in which various cell organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, all these are present for a special purpose. ऐसे ही सस्पेंडेड है, इसका कोई ना कोई कारण होता है ना, हर चीज़ का एक कोई कारण होता है. तो यहाँ पे भी एक रीज़न है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सस्पेंशन और एम्बेडन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस? दैट इज ओनली वन, they have a specific function, they have to carry out a specific function, they are performing a particular function in a cell. So we are discussing with cell organelles. So as you know that these are the subunits, we can write subunits or special structures or special structures suspended, it means that ये क्या होते हैं, suspended होते हैं in cytoplasm and carry out or we can write perform specific function. इतनी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है. ये सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? दीज आर द सब यूनिट ऑफ अ सेल. सो सब यूनिट और स्पेशल स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किसका? ऑफ अ सेल, एंड कैरी आउट और वी कैन से दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट जस्ट specific function having the production of ATP or energy. That's why mitochondria is known as powerhouse of cell. ठीक है. Cell organelles, or we can also pronunciate it cell organelles. These are categorized into two categories, major categories. The category number 1, membranous, and the category number 2 is here, membraneless. We have earlier discussed it. Membraneless means that they do not have any membrane, and membranous means that they will have a membrane. So membranous, these are again classified into two categories. The first one is single membrane bound, जिनके पास केवल एक मेम्ब्रेन होती है. सेकेंड वन इज बेटा, यहाँ से देखेंगे आप, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस मीन्स दैट जिसके पास केवल एक मेम्ब्रेन हो, या ऐसे सेल ऑर्गेनेलिस जिसके पास दो मेम्ब्रेन है बेटा. सो एज यू नो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड वी हैव डिस्कस अर्लियर, दैट इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट. दो चीज़ें हम आप अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं. हियर अ लॉट ऑफ, ओके. यहाँ से आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है बेटा. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गीज बॉडीज, लाइसोसोम्स, ठीक है. ये सभी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. लेट्स कम टू मेम्ब्रेनलेस. ओनली टू, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम.
यानी ये जो दो सोम आपको दिख रहे हैं, all these ribosome and centrosome, these two are membraneless. So now it's time to discuss one by one about the cell organelles. But before discussing about the cell organelles, let me tell you that only two cell organelles are given in your NCERT. Those are vacuoles and plastids, and none of these are given in your NCERT, but we will discuss very introductory portion of these, because all these are the part of your 9th class and 11th class. So in 9th and 11th class we have to discuss in very detail, but here we will take a general introduction of these, and by means of that you can just imagine the function and various type of cell organelles. I will also provide the beautiful pictures of these endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, mitochondria in the slide. जब आप वीडियो देखेंगे तो इसी के जस्ट बाद में एक स्लाइड ऐड करूंगा, एंड बाय मीन्स ऑफ दैट यू विल एबल टू सी, यू विल एबल टू फाइंड आउट, यू विल एबल टू इमेजिन, आप देख पाओगे बेटा कि वो कैसे होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. ऑल डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया. आपके सामने अभी क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा. इसके बाद अभी फिर आपको मैं दूसरा सेल ऑर्गेनल दिखाता हूँ. It's coming, yes, this one is what, endoplasmic reticulum. Wait for the next, again coming centrosome. Yes, it's come, it's centrosome. Yeah, आपके सामने कौन दिखा बेटा, सेंट्रोसोम दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है. अब सेंट्रोसोम के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक और सोम, और सोम का क्या नाम है, दैट इज लाइसोसोम. आ गया. Just see all these beautiful diagrams. Okay then students, तो बेटा स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so what is mitochondria? We will discuss here. These mitochondria are, we can say that, small spherical, or we can write here rod like or rod shaped structure. Okay, आगे नहीं लिख रहे, present in the cytoplasm of a cell. So mitochondria, these are small spherical, or we can say that rod shaped structures. We can write, लिख लो बेटा, नहीं आप भूल जाओगे, present in the cytoplasm of a cell. Cytoplasm of a cell. Okay, they have, क्या मैं पहले भी बता चुका हूँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, इसके पास दो मेम्ब्रेन है. फर्स्ट we can say that outer membrane, that is outside, and second inner membrane, that is inside. ठीक है, आपके लिए इतना सफिशिएंट है. यहाँ से देख लेते हैं what is the function of the mitochondria. So let's consider the function. It oxidize the food. It oxidize the food and produce energy, and hence known as power house of cell. यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेटा क्या कहते हैं, powerhouse of a cell. Why mitochondria is known as powerhouse of a cell? Because it provides the energy. How it provides the energy? By breaking the complex substances of the food into simpler forms. हम सीधा कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करती है, रिस्पायरेशन में. तो अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं आप, हेल्प्स इन रेस्पायरेशन. यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड
कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फूड आइटम्स में। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। So now we will discuss about the another, that is plastid. दूसरा हम बेटा यहाँ से देखेंगे, this was the first, now let's consider the second one is, that is what, plastids. Okay, so plastids क्या होते हैं, these are found or we can write present only in plants and having specific pigments for various color or we can write function। ठीक है, ये क्या होते हैं प्लास्टिड्स, कहाँ मिलते हैं, केवल प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, इनके पास स्पेशल पिगमेंट्स होता है और वो स्पेशल पिगमेंट स्पेशल फंक्शन कराता है किसी भी प्लांट में। ठीक है बेटा, तो वो क्या हो सकते हैं, फर्स्ट इनके तीन कैटेगरीज हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हियर ए क्लोरोप्लास्ट, द फर्स्ट वन इज हियर क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एंड दिस इज व्हाट having green pigment, that is what क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल, एंड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड, अब आप बताओ, जहाँ पे खाना बनता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किचन। खाना कहाँ बनता है, आपके किचन में बनता है। प्लांट्स में खाना कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। तो जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते थे पावर हाउस ऑफ सेल, इन द सेम मैनर बिकॉज हियर सिंथेसिस ऑफ फूड इज जस्ट टेकन प्लेस, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल, ये किचन ऑफ सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट है बेटा। ठीक है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। दूसरा बेटा यहाँ से देखो बी, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। एक्चुअली व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, these are the non-green pigment responsible for various colors, यानी जो आपको प्लांट्स में ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं, all those beautiful colors are due to presence of chromoplast, and actually chloroplast and chromoplast, all these are the type of plastids। ठीक है, हम लोगों में कलर को कौन डिसाइड करता है, मेलानिन। प्लांट्स में कलर को कौन डिसाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट। लेट्स कंसीडर द लास्ट वन इज, दैट इज व्हाट बेटा, ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, दिस इज व्हाट कलरलेस and helps in the storage of कार्बोहाइड्रेट। ये आप सभी के क्या हैं, फूड कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी के स्टोरेज में ये हेल्प करता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेजरली हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। बाकी तो करता ही है बेटा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं स्टोरेज ऑफ स्टार्च। सो दिस वाज ऑल थ्री काइंड ऑफ द plastids, and
all three kind of plastids are controlling various functions. So now it's time to discuss about the various single membrane bound structures, and as you know that we will not discuss in very detail, we have to just find out only introductory part. मैं बेटा केवल आपको introductory part बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा. होता क्या है कि जितनी भूख होती है ना उतना ही खाना खिलाना चाहिए. अभी आप क्लास 8th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, सपोज आप 4 रोटी खाते हैं, हम आपको ज़बरदस्ती 8 खिलाएंगे बेटा तो बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, कुछ खब्बू टाइप के लोग होंगे तो वो खा लेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स, दोज आर जस्ट फॉर द ईटिंग पर्पस. बट अगर हम आपको 4 की जगह 8 खिलाएंगे बेटा तो पेट की प्रॉब्लम आएगी आपको. ठीक है, आपको और भी बड़ी दिक्कतें आ सकती है. तो उसी तरह से जितना आपको ज़रूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ, इवन उससे थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ. आपको 4 रोटी है खाना है, मम्मी आपकी बहुत प्यार करती हैं, आपको 5 खिला देंगे तो आप कैसा भी मैनेज कर लोगे. तो यहाँ से वैसे है बेटा, थोड़ा सा है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता दे रहा हूँ, आप मैनेज कर लेंगे. लेकिन जब बहुत डिटेल बताऊँगा इट विल बाउंस. ओके देन स्टूडेंट्स, आओ आपको लेके चलते हैं बच्चे. कहाँ? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की दुनिया में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइसोसोम्स. सो लाइसोसोम्स के पास क्या होता है? दीज आर द सिंगल membrane bound cell organelles and having enzymes. Those are known as hydrolytic enzymes. Enzymes or chemicals that help in the digestion of various materials in the cell. And this line is very 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 important, also known as suicidal bag of cell. बेटा इनको हम suicidal bag of cell क्यों कहते हैं? because can destroy the shell during emergency. अगर बेटा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो ये ब्रस्ट हो जाते हैं, ये फट जाते हैं, और जैसे ही उनके ब्रस्टिंग ये फटते हैं, देयर एंजाइम्स, देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जस्ट डाइजेस्ट द सेल, यानी जिस सेल के पास ये होते हैं उसी को डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसका मतलब क्या है? इसीलिए इनको हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी जहाँ पे है उसी को खा जाएंगे. ठीक है बेटा. सो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज दे कैन डिस्ट्रॉय द सेल, they can digest the cell because of presence of their enzyme or chemical. And most important thing that lysosomes also digest various kind of materials or substances, those are present inside the cell. Now we will discuss about the next, that is what? Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको बेटा क्या कहते हैं? ER. So what is this? This is the network of tubules help in the storage and transport of various materials or substances within a cell.
विद इन अ सेल। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये स्टोरेज का काम करते हैं, इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को भी देखते हैं, मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर लाने ले जाने का काम करते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द ER, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा RER, दूसरे होते हैं SER। ये सभी क्या है, ये टोटल ER जो है दो कैटेगरीज हैं इनकी। फर्स्ट को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, protein synthesis, and these smooth help in lipid synthesis, lipid synthesis, or we can write fat synthesis। लिपिड या फैट की सिंथेसिस बेटा कौन कराते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस। कैसे याद रखेंगे, आपके प्रिंसिपल सर का क्या नाम है, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, ठीक है। तो R फॉर रफ और P फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपको प्रिंसिपल सर को याद रखना है, ठीक है। दिस वाज जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पज, नथिंग फॉर मोर देन दैट। सो अब तक हमने देख लिया बेटा लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ओके। अब लास्ट में देखेंगे दो और। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा था सेकेंड। अब यहाँ से देखेंगे जो मेम्ब्रेनलेस होते हैं राइबोसोम, ये क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल and scattered, small and scattered in cytoplasm। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, and found in both pro and eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल, सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मिलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन इज हियर दैट प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप कहेंगे सर यू हैव आल्सो रिटन हियर दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा रहा है, आपने बताया है, हाँ बिल्कुल बताया है। एक्चुअली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड ए सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और वी कैन से दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी वो हेल्प करता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन कराता कौन है, कराता है राइबोसोम। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेट्स कंसीडर वन मोर, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आप सभी को इनके बारे में भी पता है, दीज आर व्हाट, मेम्ब्रेनलेस। ये भी हैं बेटा, ये भी दोनों के दोनों क्या हैं, मेम्ब्रेनलेस। सो फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीज़न। अब आप कहेंगे सर ये सेल डिवीज़न आप कहाँ से ले आए, नया नया वर्ड, बताता हूँ आपको। एक्चुअली सेंट्रोसोम कहाँ मिलते हैं, प्लांट में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में मिलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, सेल डिवीज़न का। बेटा होता क्या है कि जो भी एक यूनिवर्स में है उसकी डेथ होती है, तो इसी तरह से आपकी सेल्स हैं जो पुरानी हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रह जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसको रिप्लेस कौन करता है, नई सेल्स। और वो नई सेल्स कहाँ से आती हैं, ऐसा नहीं भगवान इंजेक्शन के माध्यम से भेज देता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका डिवीज़न होता है, एंड बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन सेल इंक्रीजेज देयर नंबर, एंड इफ सेल इंक्रीजेज देयर नंबर देन न्यू सेल्स विल रिप्लेस द ओल्ड वन, जो पुरानी वाली उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा नई सेल से। तो सेल डिवीजन में हेल्प कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम कर रहा है बेटा। वी हैव डिस्कस ऑल द मेन टॉपिक्स। एक और बचा हुआ है, कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सो लेट्स डू दैट। comparison of plant and animal cell, प्लांट एंड एनिमल सेल का वो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कंपेयर। एक तरफ लिखते हैं प्लांट सेल
एंड हियर एनिमल सेल। आप सभी को पता है बट रिवाइज करा देते हैं आपको। प्लांट एंड एनिमल सेल, बीच में बाघा बॉर्डर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है। प्लांट सेल, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ओके। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इधर भी क्या होती है, प्रेजेंट। अब आप कहेंगे सर आप सब प्रेजेंट ही करा रहे हैं, अभी एब्सेंट भी कराएंगे बेटा। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका क्या हाल चाल है, प्रेजेंट, ओके। इधर भी हैं व्हाट, प्रेजेंट। अब आप कह रहे हैं सर बहुत प्रेजेंट करा लिया, और एब्सेंट कराते हैं। हियर प्लास्टिड्स प्रेजेंट, हियर एब्सेंट। अब आपकी क्वेरी जेन्युइन है कि सर आपने एब्सेंट कुछ नहीं कराया, कहाँ, प्लांट सेल में, तो हियर सेंट्रोसोम एब्सेंट, हियर प्रेजेंट। अब आप कहेंगे सर कुछ ऐसा बताएंगे जो यूनिक हो, हाँ है ना इधर, वैक्यूल्स आर लार्ज एंड मैनी, वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े होते हैं इधर। इफ प्रेजेंट स्मॉल एंड लेस, ठीक है बेटा। हम डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है जनरल डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में। क्विकली रिकैप करते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज नॉर्मली, बट इन द केस ऑफ फंगस मेड अप ऑफ काइटिन। यहाँ पे एब्सेंट है सेल मेम्ब्रेन, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर भी न्यूक्लियस, इधर भी प्लास्टिड्स, इधर नहीं है, इधर सेंट्रोसोम नहीं है, इधर है, इधर वैक्यूल्स बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, इधर है अगर तो छोटा है और कम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स। ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आओ इधर फिर से एक तरफ ध्यान देते हैं, कीवर्ड्स की तरफ। अब आप कहेंगे सर आपका वीडियो लंबा हो जा रहा है, बेटा चैप्टर खत्म करना है ना आज, ठीक है। सबसे पहले सेल, सेल क्या होता है बता चुका हूँ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा टफ हो गया, आओ आसान सी डेफिनेशन लो, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप फिर कह रहे हैं सर डेफिनेशन थोड़ी सी टफ हो गई, एक डेफिनेशन और ले लो। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप फिर से कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो अब आप 8th से पढ़ना छोड़ के 7th में आ जाओ। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इससे आसान कुछ नहीं है। एक और डेफिनेशन और है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, बट कुछ नहीं। आगे बेटा सेल वॉल, सेल वॉल मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, कहाँ, प्लांट सेल, एनिमल में नहीं होती भाई। प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट फंगस में काइटिन। सेल मेम्ब्रेन भी दिया गया है तो दोनों में होता है, ये भी आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है यूनिसेलुलर, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, यूनि मीन्स सिंगल, ऑर्गेनिजम्स हैविंग ओनली वन सेल। चलो एग्जाम्पल बताओ फटाफट, कौन है एग्जाम्पल,
हाँ सही बताया आपने, बैक्टीरिया। और बताइए, अमीबा, गुड। और पैरामीशियम और यूग्लिना। अब वक्त आ गया एटसेट्रा लगाने का। ओके, लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर, इसी का बड़ा भाई। मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल, सो ऑर्गेनिजम्स हैविंग मैनी सेल्स। एग्जाम्पल्स, अरे भाई अपना नाम लिख लो, ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या हैं, हम लोग यूकैरियोट्स हैं। एनिमल्स यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, आगे क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, दिस इज व्हाट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्या कहाँ होता है ये, न्यूक्लियस में पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, दिस कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अगला देख लीजिए यहाँ से, जीन। तो जीन क्या होता है बेटा, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तरह से जीन, डीएनए जो है आपका, उसका छोटा सा टुकड़ा होता है, क्रोमोसोम पे पाया जाता है, और पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर होता है, क्रोमोसोम जीन के साथ उसको कहाँ, ऑफ स्प्रिंग में भेज देते हैं। यानी आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनका जीन आपके अंदर है। ठीक है, कौन लेके गया, क्रोमोसोम। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द जीन एंड क्रोमोसोम। लेट्स कंसिडर फ्यू मोर। अगला दिया गया बेटा न्यूक्लियस। आप सभी को पता है, करिए क्या है, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ सेल, सेंटर पार्ट ऑफ सेल। आप और क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसी का एक छोटा भाई है न्यूक्लियोलस। ये क्या होती है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस हेल्प इन राइबोसोम सिंथेसिस, हेल्प इन राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियोलस। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस, इन द न्यूक्लियस। कैसी होती है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है एंड इट इज मेम्ब्रेन लेस, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कीवर्ड्स। ओके, जो कीवर्ड्स बचे हैं ये आपका होमवर्क है। क्या क्या है आपका होमवर्क, आपको करना है बेटा, पहला सबसे ज़्यादा क्या दिया गया है, ऑर्गन, आपको बताना है ऑर्गन क्या होता है। सेकेंड दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, आप सभी को मैं आज ही बताया हूँ। थर्ड प्लास्टिड्स, दिस वन इज ऑल्सो गिवन। फोर्थ और क्या दिया गया है, प्रोकैरियोट। अगेन फिफ्थ यूकैरियोट। वन मोर, सिक्स्थ pseudopodia. Pseudopodia. Okay, one more important thing, that during watching the video you all have to take your copy as a particular pen. कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे मेन पॉइंट्स को नोट करेंगे, ऐसे पॉइंट को भी नोट करेंगे जो आपको समझ में नहीं आया है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे मोबाइल लेके लेट के फिर देखो, लेट के देखोगे तो सो जाओगे। ठीक है, वीडियो आप बैठ के देखोगे, चेयर पे बैठ के देखो, तख्त पे बैठ के देखो, जो भी आपके घर में उस पर बैठ के देखो। देखने के बाद जो आपको समझ में नहीं आया उसको नोट करो, और नोट करने के बाद मुझे भेजो, मैं सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी डाउट, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टूड all the concept after watching the video, then you can also like the video.
ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में आया तो बेटा आप लाइक करो, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स वाई दे विल ऑल्सो बेनिफिटेड, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. If you subscribe the channels, you will get the notification when new videos will be uploaded. Otherwise, we all are sharing the link in your WhatsApp group. From there, you can watch the video. So once again, very thanks for watching the video, and always watch the full video. And like always, have a nice day. Keep smiling. Jai Hind बच्चों.